if you have iPhone or Samsung Galaxy as your name, so that we know who you are. And also, we have Jyoti Goyal from RDF, who is our tech host for today. So if you have any trouble, let her know. Please put yourself on mute. We will have a lot of time for everybody to share and talk and give their expert opinion. But in the meantime, please put yourself on mute. People are still walking in, so whilst everyone still settles down, use the chat section to introduce yourselves, and we will begin in a couple of minutes. It's so lovely to see familiar faces. So great. Once again, good afternoon, everyone. I'm Elsa Marie De Silva. I'm based out of Mumbai, India, and I'm a SUNY Mumbai alumni. For those who don't know, SUNY stands for Swedish Alumni Network. And in India, we have many chapters. This particular program is being organized by the Mumbai chapter. And I will hand over to Behroz to say a few words. So Behroz, would you like to introduce yourself and share with us, a little bit about SUNY Mumbai? Behroz, you're on mute. Okay, can you hear me now? Hello? Hello? Yes. We can. Yeah, we can hear you. Okay. Thank you. So thanks, Elsa, for taking the trouble to kind of set this up. It's really very nice of you. My name is Behroz Gazdar. I'm the chairperson of the Mumbai chapter of SUNY. And I have been in the sustainability field for the past, I think, about 15 years now, and which has now become my passion, and have been part of the Swedish Institute for since 2011. So I kind of, so Elsa, can I just kind of talk a little bit about this, about the program and all that? Yes, please. Okay. So so on behalf of the board members of SUNY Mumbai chapter, I welcome everybody to this event on peer mentoring for rural digital entrepreneurs. To begin with, I've already said a thank you to Elsa, but I'll have to say it once again more officially, and my colleague on the board, Richa Pant, who's from L&T Finance, who have sort of worked out this collaborative and a rather unique program to drive this kind of positive change in society. I would also like to place on record our sincere thanks to the Swedish Institute for creating such a platform that enables continuous learning in the sphere of social responsibility and promoting social equity. Today, information technology has such a strong connect with our lives and is as important as the air we breathe, I think. It's completely changed the way we live, we work, we play, or we think. And the number one benefit of information technology is that it empowers people to be creative, productive, and enables people to learn things that was almost unheard of almost like a decade ago. But it has become a single most important instrument for human progress. It is therefore only logical that we try to make IT an effective weapon to bring about social equity. And the intent of this program is just that, to bridge the economic divide, exploring possibilities of livelihood for rural women in the banking, finance, and insurance sector. You will agree with me, friends, when I say that the idea is truly insightful and brings an economic and gender equality perspective to the fore. As we all know, in India, finance has traditionally been a part of the male domain, and financial decisions by women was kind of just not done.
This program is designed to negate this bias by giving better access and understanding of IT to finance to rural women, along with a hand-holding and mentoring to ensure that there are positive outcomes. The program therefore gives us an opportunity to be mentors to rural women who have shown the courage and conviction to come forward and explore the new horizons. We hope you find this peer mentoring bootcamp an interesting and insightful experience as we get introduced to different realities and learn from one another. So I think with that, I'll sort of pass this on back to Elsa. I'm personally very excited about this whole program and see how I personally also am able to help this entire program that we've just taken up and it's about to kick off. Thank you. Thank you, Behroz. And once again, welcome everyone to the Peer Mentoring Bootcamp for the rural digital entrepreneurs. We have 10 of them, not 8, as I mentioned, because there was so much of enthusiasm that 10 showed up. And we are very excited to have them all here and all of you here. And like Behroz said, we would like to thank the Swedish Institute as well as the Sunny Mumbai chapter for giving us this opportunity. Richa Pant and I have been designing this and planning this for the last 2 years, and finally it sees the light of the day. Now, this program is in 3 parts, as some of you may have realized when I sent the mail out a few days back. This is the first part of the program where we have all of you here with the 10 digital entrepreneurs. You will hear their inspirational stories moderated by Supreet. And then we will go into breakout rooms. We have 5 rooms facilitated by Lata Shankar Narayan, Radha Sule, Gauri Kachrekar, Rufina Fernandez, and Sanjay Shivkumar. And after that, we will come back into the main plenary and talk about the common challenges, but what we as a network can further do. After that, in August and September, we will seek individual mentors for these 10 entrepreneurs. And then again in October, we will have a session like this where they will share what worked and what didn't work. And if it has been successful, we might continue with this program or scale it up. But we are counting on you to make it a success so that more women can benefit from such mentorship. As you know, mentoring is such an important and critical part of our leadership growth. And women in rural India really need our help. And we also can learn from them. I've learned that mentoring is a two-way process. It's not only they learn from you, but you also learn from them. I see Lata has her hand up. So Lata, do you want to say something? No, I don't think my hand is up, is it? Yeah. Oh, I I thought there was a burning question. no, You no, know, no, no, no. I'm so sorry. No worries, no worries. But thank you, Kamal-san, Lata, because you've been a big supporter of the program, even the last board, for a long time. It's just that we couldn't implement it for whatever reasons. But now here we are. And without much ado, I'm going to hand it over to Supreet because we have 10 inspiring ladies to listen to. Over to you, Supreet. Thank you, Elsa. And hi, everyone, once again. I'm Supreet. I'm Elsa's partner at Red Dot Foundation. I'm also a filmmaker, like a lot of you know. And storytelling is something which always excites me. I'm going to switch to Hindi now, क्योंकि हमारी जितनी सखी यहाँ पे हैं, digital entrepreneurs यहाँ पे आई हैं, वो सब हिंदी में मेरे साथ बातचीत करती हैं, तो मैं अब हिंदी में बात करूँगी. तो एल्सा ने ऑलरेडी मेंटरिंग के बारे में इतना कुछ बोल दिया है ये प्रोग्राम के बारे में. आई डोंट हैव मच, मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन जो कहानियाँ हमारे पास आज आप सुनेंगे इन 10 वेरी इंस्पायरिंग लड़कियों से, वो कोई पुणे से है, कोई शोलापुर से है, कोई लातूर से है, एंड इनकी आप अगर कहानियाँ सुनेंगे, जब ये छोटी थी कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता था, कोई लॉयर बनना चाहता था, बट क्योंकि किसी फैमिली रीजन से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, वो लोग ये सब कर नहीं पाए. तो बहुत लेट लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनको पसंद था, एंड जिन चीज़ों ने इन्हें एक्चुअली
फुली जीने का एक चांस दिया। तो मैं खुद नहीं बताऊंगी, मैं सबकी कहानियां बोल सकती हूँ, मैं सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ अब, बट मैं इनवाइट करूंगी एक एक करके। तो जितनी भी यहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे साथ, आप सब मुझे जानते हो, मैं आपका नाम लूंगी, आप अपने आप को अनम्यूट करना, अपना वीडियो ऑन करना और फिर अपनी कहानी सुनाना। और मैं शुरुआत करूंगी रेशमा से। रेशमा, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे और अनम्यूट करेंगे अपने आप को। सो रेशमा, आप कहानी सुनाइए अपनी। हाँ, नमस्कार मैम, मैं रेशमा सुड़के, कलम क्लस्टर मोहागांव से हूँ। मैं 28 साल की हूँ। मेरा ग्रेजुएट पूरा हुआ है और मैं 2 साल से डिजिटल सखी का काम करती हूँ और 3 महीने से डिजिटल सेवा केंद्र का ट्रेनिंग लिया है। मैम, मैं बचपन में मैं लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने ग्रेजुएट पूरा किया और फिर 9 साल उसमें बीत गए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर हमारे गांव में डिजिटल सखी का प्रकल्प आया, क्योंकि हमारे घर में किसी को मंजूर नहीं था कि मैं बाहर काम करूं, बाहर जाऊं, किसी लोगों से बोलूं, बातचीत करूं। ये हमारे घर को किसी को मंजूर नहीं था। लेकिन हमारे गांव में डिजिटल सखी प्रकल्प नाम सुना और मैं इंटरव्यू को गई। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे डर लगता था कि क्या पूछेंगे, क्या बोलना होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मुझे बाहर तो जाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, घर में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन होगा, इतनी खुश हो गई। लेकिन सिलेक्शन होने के पहले मुझे सिलेक्शन होने के पहले मेरा फोन, हमारे मिस्टर का फोन स्विच ऑफ हो गया। सर बहुत फोन लगाते थे, लेकिन फोन स्विच ऑफ होने के कारण मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर मैंने सोमवार को फोन लगाया सर को और सर को बताया, पूछा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। सर बोले तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, मैं फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ लग रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं बता पाया। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। फिर ये मैं इतनी खुश हो गई कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ, घर के बाहर निकल सकती हूँ, मेरे बच्चों को मैं बाहर घूमने ले जा सकती हूँ। मुझे इतनी खुशी हो गई कि मैं खुशी से समा नहीं पाई। और इस डिजिटल सखी प्रकल्प की वजह से मैं गांव में देना पड़ा। विजिट के कारण लोगों से बातचीत होने लगी, उनको योजना के ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बताना, इसलिए लोग भी बहुत अच्छा सम्मान देने लगे, क्योंकि उन्हें घर में बैठ के कुछ पता नहीं था। हमारी वजह से उनको योजना के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में सब कुछ पता लगा है। उनको घर में बैठ के हम योजना के फॉर्म भर के दे रहे थे, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में उनके फोन में चालू करके देते थे, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर डिजिटल सखी के कारण मैं केक बनाना भी सीख गई। मैं डिजिटल सखी के कारण मैं केक बनाना भी, अब मेरा केक का छोटा सा बिजनेस है और बहुत ऑर्डर भी आते हैं। मैं शाम को करती, सुबह को विजिट को जाती हूँ, फिर शाम को मैं डिजिटल सेवाओं का काम, जो भी ऑनलाइन सेवाएं आई है वो मैं शाम को, और केक भी शाम को बना के रखती हूँ, जैसे ऑर्डर आते हैं वो बना के देती हूँ। और ऐसा इस डिजिटल सखी के कारण मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक डिजिटल सखी प्रकल्प नहीं होता तो मैं आज भी घर में बैठी रहती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भगवान से भी कम नहीं है डिजिटल सखी प्रकल्प। थैंक यू मैम। थैंक यू रेशमा, थैंक यू सो मच। और रेशमा ने आपको ये नहीं बताया कि पहले जो फैमिली बोलती थी कि ये बाहर नहीं जाना, काम नहीं करना बाहर जाके, आज वही फैमिली मेंबर्स इनसे एडवाइस लेते हैं। मुझे पूछ के सब कुछ करते हैं। बैंक में कोई काम होगा तो मुझे बोलते हैं तुम जाओ बैंक में वो करो, अब कर्ज लेना है तो पूछ के आओ, अब हमारे घर में क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब मुझे सब अच्छा लगता है कि मुझे जो पूछते नहीं थे वो आज मैं बताने से मुझे पूछ के बगैर कुछ करते नहीं। थैंक यू रेशमा। और रेशमा चाहती हैं आगे जाके वो अपना खुद का एक डिजिटल सेवा केंद्र, आगे जाके मैं
डिजिटल सेवा केंद्र बड़ा सा बनाना चाहती हूँ मैम। मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ कि हमारे गांव में ऐसा कोई डिजिटल सेवा केंद्र नहीं होगा, और वो लोग मुझसे जुड़े रहने चाहिए। पैसे कम मिले तो अच्छा है, लेकिन लोग मुझसे जुड़े रहने चाहिए। और मुझे मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग चाहिए। थैंक यू वेरी मच रेशमा। जब ब्रेकआउट रूम में जाएंगे तब आपके मेंटर आपको आपके चैलेंजेस में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ऐसी ऐसी रेशमा जैसी आपने पहली कहानी सुनी है, अभी आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं चैट में। आप जाके पढ़िए क्या बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आपसे हम ब्रेकआउट रूम में मिलेंगे अभी सीधा इसके बाद, ठीक है? थैंक यू रेशमा, थैंक यू। और अब मैं चाहूंगी स्वाति आए यहाँ पे। स्वाति, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, आ रही है। वेरी गुड। चलिए अब आप अपनी कहानी सुनाएं। यस, सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्वाति काका साहेब जादव है। Okay, yeah. मैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कलम क्लस्टर से। मेरा गांव ममरूर है। मेरी उम्र 27 है। मेरी 12वीं तक कक्षा हुई है। बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं कोई ना कोई जॉब करूं, कोई ना कोई नौकरी करूं। लेकिन पढ़ाई भी अधूरी रही मेरी, और मेरी 10वीं में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे। और उसके कारण भाई भी छोटा था, शादी मेरी जल्दी हुई, यानी कि मैं कुछ कर नहीं पाई। बाद में शादी होने के बाद गांव में जल प्रकल्प है, उसमें डिजिटल सखी प्रकल्प है, उसमें डिजिटल सखी चाहिए गांव में, ऐसा मुझे पता चला। तो मैंने 2 दिन बाद कलम को आके इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमें गांव में करने के लिए हमें ट्रेनिंग दी गई, उसमें हम सब सीख गए। और आगे चल के हमें कुछ करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमें ऑप्शंस दी गई। उसमें मैंने डिजिटल सेवा केंद्र चुना। उसमें हमें ट्रेनिंग भी मिली, और उसे आगे बढ़कर कैसे बढ़ाना है, और उसमें जो भी ग्राहक आते हैं वो वापस ना जाए, हमें सभी सर्विसेज कैसे देनी है, फॉर्म कैसे भरनी है, कम्युनिकेशन, इसकी ट्रेनिंग चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं अब खुद चलाकर अपने बच्चों को भी पढ़ाकर उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ी करूँ, यानी कि आगे चलकर जो मेरा ख्वाब नहीं हो उन्हें दूं, सिखाकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो। और 2 साल में मेरा डिजिटल सेवा केंद्र बड़ा हो, यानी कि कम से कम 1000 लोग तो आए मेरे सेवा केंद्र में, ऐसे मैं चाहती हूँ। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। एंड स्वाति ने अपने लिए तो जो किया वो किया, सबसे लड़के सबके सामने खड़े होके कह के कि नहीं मुझे ये करना ही है, और वो चाहती है कि अपने बच्चों को भी ऐसा बनाए, वो बहुत जरूरी है। तो स्वाति, ब्रेकआउट रूम में जो आपके साथ मेंटर होंगे उनको बताओ आपको एग्जैक्टली किसमें मदद चाहिए, तो वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू स्वाति, थैंक यू। ऑलराइट, सो टब्बू नगाड़े, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाय, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। मेरा नाम तब्बू सैफन नगारे है। मैं शोलापुर क्लस्टर में यत्नाल गांव से हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। पिछले 2 साल से मैं डिजिटल सखी में जुड़ी हुई हूँ। मुझे बचपन से ऐसे दूसरों को पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता था। ऐसे स्कूल में वगैरह हम जब सर लोग मैडम लोग नहीं आते थे तो मैं सामने जाकर बच्चों को पढ़ाना, ऐसा हमारा फोन चलता था। और उसी में मुझे मतलब टीचर बनना सा ऐसा लगता था। बचपन से ही मेरा टीचर बनने का सपना था, लेकिन
कुछ मायके की थोड़ी आर्थिक परिस्थितियों के कारण मुझे उधर उतना पढ़ाई मेरा नहीं हुआ। हमारी उधर मायके में कैसा खुद का खेती नहीं है, हमारे माँ बाप मतलब दूसरों के खेती में वर्क करके वो हमको इतना 12th तक वो मुझे उधर पढ़ाए। फिर 12th के बाद मेरा शादी हुआ, फिर शादी के बाद इधर इधर मैंने ससुराल में आके मेरा डीएड कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद घर वालों का भी सपोर्ट था, कुछ भी करना है कहने के बाद वो भी मतलब करो, ऐसे हर चीज में हाँ रहता था। फिर उसके बाद गांव में डिजिटल सखी का एड मतलब इंटरव्यू है ऐसा सुना, फिर सबने हाँ भी किया। फिर जाना भी चाहती थी लेकिन मेरा छोटा लड़का 5 महीने का था, इसलिए मैं उधर नहीं जा पाई। एक ऐसा लगा कि जिंदगी में बहुत ही ऐसा सुनहरा मौका ही खो दिया हो। मतलब आया था कुछ गांव में चलकर लेकिन मैं नहीं जा सकी, ऐसा 2-3 दिन तक बहुत ऐसा बुरा लगा। लेकिन फिर और कुछ नया आएगा बाद में, इसके इंतजार में थी कि लगा नया आने के बाद मैं कुछ कर सकूंगी। फिर उसके बाद 5-6 महीने हो गए, फिर डिजिटल सखी का फिर से मुझे मौका मिला। फिर मेरी सासू माँ के जरिए इसमें मुझे मतलब मालूम हुआ और उन्होंने मेरा नाम भी उधर दे के आए हो। फिर मैंने इंटरव्यू दिया और इसमें सिलेक्शन भी हो गई। फिर उसके बाद में सिलेक्शन के बाद पुणे में इंटरव्यू हुआ, फिर इंटरव्यू के जरिए से हमारा मतलब पहले कैसा था कि बाहर ही नहीं जाते थे हम, वो मुस्लिम कास्ट के होने की वजह से ना ऐसे कंटिन्यू पर्दा रहना, घर में डोर बंद करके घर में बाहर नहीं जाना। घर वालों का कुछ नहीं था, लेकिन जब हमारे रिश्तेदार है वो बोलते थे कि बहू को काम पे भेजने की क्या जरूरत है, वो भी हर रोज बाहर घूमना होता है, ऐसा होता है। फिर भी सबका कोई भी नहीं माना घर में, ठीक है तुमको करना है ना, मैं सबको बोलती थी कि मुझे करना ही है, करना ही है तो करना ही है। फिर उसके बाद हाँ बोल के ऐसे कुछ दिन थोड़ा ये हुआ, लेकिन बाद में सब माने, फिर किए इसमें जाना। फिर इसमें जाने के बाद मुझे खुद में ही बहुत सारा चेंज आया मेरे में। तो हमारे बात करने में ढंग होगा या फिर दूसरों को मिलने जुलना मतलब कैसा होता है, सब कुछ मुझे इसमें से मालूम हुआ। फिर इस डिजिटल सखी के जरिए ही इंस्पिरेशन का था, इसमें हम सभी को मतलब डिजिटल सखी के बाद भी हम लोगों को मत हमारा वर्क बंद ना करते हुए हमको कुछ तो हो, हम वापस से घर में ना बैठे। इसलिए मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमको एस्पिरेशन के जरिए बहुत बड़ी मदद की। इसमें हमने सेवा केंद्र का ऑप्शन चुना और इसके जरिए मैं गांव में ऐसी मतलब जो हमारे इसके बाढ़ बाढ़ आने से वगैरह जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमारे गांव के लोग बाहर शोलापुर में जाके उनको फॉर्म भरना होगा, ऐसे कोई भी चीज होंगी 7/12 निकालना, वो उधर जाना पड़ता। तो इस समय खुद हमारे गांव में उपलब्ध करा के दे सकूं। और इधर कैसा है, शोलापुर में ज्यादातर सब सेवा केंद्र जेंट्स लोग ही चलाते हैं, लेडीज लोगों का नहीं है। तो शोलापुर में डिजिटल सखी के जरिए लेडीज लोग चला के दिखाना भी है और इसी के जरिए खुद में तो थोड़ा आर्थिक मदद तो खुद को भी करनी है। और बस मैं थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम जो यहाँ कह रहे थे कुछ टाइम पहले कि औरतों को दूसरी औरतों को सिखाना चाहिए, उनको भी ऊपर उठाना चाहिए। इनके घर में इनकी सासू माँ ने जाके इनका नाम दे दिया बिना इनको बताया भी नहीं और उन्होंने नाम दे दिया इनका। तो अपनी सासू माँ को थैंक यू जरूर बोलिएगा हमारी तरफ। बहुत बड़ा उनका तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। थैंक यू टब्बू। ओके, महादेवी आप हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्कार मैम, मेरा नाम नमस्कार। महादेवी। हाँ बोलिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम महादेवी गेंसी बिराजदार। मैं सोलापुर क्लस्टर दरगनहली गांव से बोल रही हूँ। मेरा उम्र 35 साल है। मेरा पदवी तक शिक्षा हुई है और इतना पढ़ने के बाद भी मैं घर में 10 साल बैठी थी। मेरा सपना था एक जॉब करना, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। हमारे ससुराल में नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरा जॉब करने का सपना रह गया। एक दिन गांव में सीआरपी के वजह से मुझे पता चला कि डिजिटल सखी का प्रोजेक्ट
आया है और उसमें करने का है तो आप कर सकते हो। ऐसा बोले बाद मैं एप्लीकेशन कर दी और एप्लीकेशन के बाद मेरा सेलेक्ट हो गया और मैं डिजिटल सखी 2 साल से कर रही हूँ और मेरा घर का पूरा सपोर्ट है। मेरा जो सपना था वो सपना मैं आगे चल के मेरे बच्चों को सिखा कर एक जॉब लगाना ये मेरा जिद है। और अब कुछ तो हो जॉब नहीं तो ये तो जॉब करने में मेरा आनंद है, इसमें मैं आनंद मान रही हूँ। और मेरा मैं आगे चल के डिजिटल सेवा डालकर हमारे ग्रामीण लोगों को सोलापुर से जाने का और आने का बचा के उनको सेवा दे सकूं और औरत भी ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये उनको सिद्ध करने का मौका मिला है और वो मौका सोने मिलकर संधि कर सोने करके दिखाऊंगी। थैंक्स मैम। थैंक यू महादेवी। तो महादेवी ने बहुत ही सिंपली, बहुत ही छोटी कुछ शब्दों में उन्होंने बता दी कहानी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, उनको सपोर्ट नहीं मिला था घर पे पहले, अब मिलता है क्योंकि अब उन्होंने कुछ प्रूव कर दिया है करके कि मैं भी कर सकती हूँ। और महादेवी को देख के ये भी लगता है कि कोई भी टाइम सही होता है कुछ करने के लिए। और कल मैंने उनकी बेटी से भी बात की थी और मुझे लगता है आपकी जिद बहुत अच्छी है और आपकी बेटी आपकी ही तरह कुछ करेगी आगे जाके। थैंक यू थैंक यू। मोहिनी, आप हैं यहाँ पे? हाँ मैम। हाँ, नमस्ते, मैं मोहिनी दीपक डांगे, चिखड़े, तालुका बाशी, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर में रहती हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है और मैं 2 साल से डिजिटल सिटी प्रोजेक्ट में काम करती हूँ। मेरी पढ़ाई बीएससी केमिस्ट्री में हुई है। मैं बचपन से माँ पिता की बहुत ही लाडली थी। 10वीं कक्षा होने के बाद मैंने साइंस में एडमिशन लिया क्योंकि मुझे एक अधिकारी बनना था। इस वजह से मैंने बीएससी तक एडमिशन लिया और आगे भी पढ़ने की मुझे बहुत ही इच्छा थी। लेकिन उस समय हमारे घर की हालत बहुत ही नाजुक थी। हमारे माँ और पिता दूसरों के खेत में जाकर मजदूरी करते थे और हमें संभालते थे, इसलिए वो आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। लेकिन मैंने घर पर ही किताबें लाकर पढ़ाई की, एमपीएससी की तैयारी की और आगे का जो क्लास लगाना है एमपीएससी के लिए वैसी मेरी कंडीशन नहीं थी। लेकिन मैं गांव में रहती हूँ, गांव छोटा है और गांव में लड़कियों की शादी बहुत ही जल्द कराते हैं, इसलिए मेरे माँ पिता ने ही मेरी शादी करा दी। और उस समय से मेरी पढ़ाई बंद हो गई और मेरे जो सपने थे वो टूट गए। फिर शादी के बाद मैंने मेरे पति के साथ मैं अच्छी तरह से रहने लगी। मेरा ससुराल सोलापुर है। 5-6 महीने तक मैं उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहने लगी, घर परिवार को संभालने लगी। फिर कुछ 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ देना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बात पर डांटने लगे, बोलने लगे। फिर मैंने उनको समझाने की बहुत ही कोशिश की, फिर भी वो नहीं समझे। फिर ऐसा करते वैसा करते करते 1 साल हो गया। फिर मैं डिलीवरी के लिए मायके आ गई और मुझे एक बच्ची हो गई। लेकिन फिर बच्ची होने के बाद वो मुझे देखने या बच्चे को देखने या मुझे लेने नहीं आए। फिर मैं खुद 5 महीने के बाद कुछ मेरे ससुराल चली गई। फिर भी उन्होंने मुझे बहुत ही तकलीफ देना, मार पीटना शुरू कर दिया और तंग आकर उसने मुझे मायके छोड़ दिया। उस समय से वो मुझे तलाक मांगते हैं और फिर मैंने कोर्ट में से जाकर जाने का फैसला किया और वह उस समय मेरा टेंशन बढ़ गया और मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई और मेरे मन में अलग अलग के ख्याल आने लगे। लेकिन मेरे बच्चे की वजह से मेरे खुद को मैंने बहुत ही संभाल लिया। फिर मेरी एक सहेली है आंगनवाड़ी सेविका, उसने मुझे डिजिटल सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया और डिजिटल सिटी प्रोजेक्ट में आने के बाद मैं जो कुछ काम है वो सब कुछ बता दिया था।
फिर मैं प्रैक्टिकल में काम करने लगी, तो मुझे लोगों से, महिलाओं से बात करने में दिक्कत आती थी शुरुआत में। फिर मैं धीरे धीरे संभल के आगे बढ़ने लगी, और मैं इस प्रोजेक्ट में जब आई हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। और मैं जब ट्रेनिंग के लिए पुणे में जाती हूँ, तब मैं मैडम से बात करती हूँ, तो मैडम को बोलने के बाद मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मुझे इस पोजीशन में मैडम काम कर सकती है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। यही मेरी मुझे प्रेरणा मिलती है। इसलिए, और लेकिन आज मैं पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रही हूँ। और आगे जो मुझे डिजिटल सेवा का काम करना है, और इसके लिए मुझे ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू मोहिनी, थैंक यू सो मच। मैंने मोहिनी से 2 बार पहले बात की है। मैं हर बार बात करती हूँ, मेरे से ज्यादा वो स्ट्रांग है, मेरी आंखों में पानी आते हैं, लेकिन मोहिनी बोलती है नहीं मैंने करना ही है ये। एंड वो जितनी दृढ़ता से अपना सेवा केंद्र एस्टैब्लिश करके चलाना चाहती है ना, मैंने मोहिनी को कल भी बोला था, ये आपकी अभी नई लाइफ शुरू हुई है, आपकी बेटी आई है और आपकी नई लाइफ शुरू हुई है, और यहाँ पे सिर्फ आपने ऊपर ही जाना है, आगे ही जाना है। थैंक यू मोहिनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, शुभांगी हरसुरे, शुभांगी अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, नमस्कार, मैं शुभांगी गणपत तुलसुरे, मैं नीलंगा क्लस्टर में से ताड़मुगड़ी गांव से बोल रही हूँ। मैं 27 साल की हूँ और मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। इस प्रोजेक्ट में आने से पहले मैं हाउसवाइफ थी। मुझे बाहर या किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। मैं घर और बच्चे के इसमें ही सिमट कर रह गई थी। मेरा ख्वाब था कि मैं खूब पढ़ाई करूं, लेकिन मेरी 10वीं में ही शादी हो गई। मेरा एग्जाम भी 10वीं शादी होने के बाद एग्जाम दिया है मैंने 10वीं का। कभी सोचा ही नहीं था कि घर के बाहर निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन जब हमारे गांव में डिजिटल सखी का प्रोजेक्ट आया, तब मेरे मन में बहुत इच्छा हुई कि मैं जॉब करूँ ये डिजिटल सखी का। पर घर के काम और जिम्मेदारी की वजह से मैं नाम देने के लिए डर रही थी। जब हमारे क्लस्टर मैनेजर पवार सर ने हमारे घर में आकर इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पति को बताया, उन्होंने बोला कि जाओ तुम, अब बच्चे हो गए, सब जिम्मेदारी भी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम काम कर सकती हो। ऐसे बोलने के बाद मैं डिजिटल सखी बनी। तब मुझे घर से बाहर निकलने का मौका मिला। मुझे जब कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग मिला, तब मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई और मैं किसी से भी बिना घबराए बात कर सकती थी। और मुझे डिजिटल सेवा केंद्र का ट्रेनिंग मिला, उससे मुझे बहुत बड़ी मदद मिली, क्योंकि गांव में जाकर मैं जब विजिट करती थी हर किसी के घर में, तब एक अलग सा फील लगता था, क्योंकि सब आओ मैडम ऐसा बोलते थे। तब लगता था कि मेरी भी कोई कीमत है गांव में, मेरा भी कुछ बन गई हूँ मैं, ऐसा लगता था। मैंने डिजिटल सेवा केंद्र नहीं है तब भी मैंने बहुत सेवाएं दी है गांव में, जैसे पैन कार्ड निकालना हो, एटीएम के फॉर्म भरना हो, जैसे बैंक के छोटे छोटे काम होते हैं। हमारा केओस कैंप है गांव में लगाने का, उसमें हर आठवड़े में एक बार लगाना पड़ता है गांव में। जब लगाती हूँ तो लोग पूछ पूछ के आते हैं कि आप कब लगाने वाले हो कियोस्क। हमारा पैन कार्ड निकालना है, उद्योग आधार निकालना है, शॉप एक्ट निकालना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनके, वो आते हैं। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि मेरा एक गांव में किसी का भी डिजिटल सेवा केंद्र नहीं है, और मैं एक लेडी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गांव में मेरा डिजिटल सेवा केंद्र इतना अच्छा चले कि गांव के बाहर कोई जो डिजिटल सेवा केंद्र के काम है, इसलिए बाहर ही नहीं जाए। और इसके साथ साथ मैं गांव में एक MSCIT कंप्यूटर का कोर्स निकालना चाहती हूँ, क्योंकि गांव में लड़कियों की वजह से, जैसे गांव में लड़कियों की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि MSCIT का कोर्स 1 या 2 घंटे का रहता है। इसी वजह से, कोर्स की वजह से उन्हें बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं लोग, इसलिए मैं गांव में ही खोलना चाहती हूँ। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है मैम, आप सबकी सलाह की, नॉलेज की बहुत जरूरत है। थैंक यू।
थैंक यू शुभांगी, थैंक यू। तो हम सिर्फ यहाँ पे शहरों में बैठ के ही नहीं सोचते कि बाकियों को कैसे और आगे लाएं और लड़कियों को कैसे पढ़ाएं। शुभांगी का ड्रीम है कि जितनी लड़कियां हैं उनके गांव में सब उनके पास पढ़ें और आगे कुछ बने, घर पे ही ना बैठे सिर्फ। तो हम सब आपके साथ हैं और आपके मेंटर आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे अगले 2 महीने आप कैसे ये ड्रीम पूरा कर सकते हो। जी मैम, थैंक यू सो मच शुभांगी, थैंक यू। थैंक यू। मंगल। हेलो मैम, मैं हेलो मैं मंगल शिरीषकड़ पारगांव में रहती हूँ। मेरे क्लस्टर का नाम दौंड है, जिला पुणे है और मेरी उम्र 29 साल की है। मेरे एजुकेशन 12वीं तक हुई है। 12वीं के बाद मैं घर पर ही थी 2 साल तक। घर पर होने के बाद में पढ़ाई बंद हो गई और स्कूल में नहीं जाना, वो घर के काम करना, ऐसा ही काम करती थी। उसके दौरान मैं टीवी देखना बहुत पसंद करती थी। टीवी देखते देखते मैंने एक सीरियल देखी थी जिसका नाम दिया और बाती है। उसमें वो लड़की थी जो पुलिस इंस्पेक्टर बन गई थी बहुत पढ़ाई लिखाई करके, उसने भी बहुत स्ट्रगल किया। वैसा ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ। लेकिन शादी से पहले कुछ परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उसके वजह से मुझे वो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद वही घर के काम, बच्चे, शादी, खेती का काम ऐसा करती थी। ऐसे ही काम करते करते मेरे सहेली से मुझे पता चला कि मेरे पड़ोस की जो सहेली थी उससे पता चला कि गांव में कुछ डिजिटल सखी का प्रकल्प आया है। कुछ क्या है वो पता करने के लिए हम उसके साथ गए थे। वहाँ पता चला कि उद्योजकों को निवड़ करते हैं और डिजिटल सखी का काम है, ऐसा ऐसा काम है, उसमें ऐसा ऐसा घूमना पड़ता है। वही सब घर के लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था। मेरा सिलेक्शन हो गया, 2-3 बार सरपंच मैडम जी का फोन आया मुझको, आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने घर पे पूछा सास ससुर जी से, उन्हें अच्छा नहीं लगता था ऐसे गांव में घूमना, लोगों से बातचीत करना, उनके घर पे जाकर ऐसे ऐसी बातें बताना योजनाओं की, या डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की, वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैंने उनसे फाइट की। मेरे देवर की शादी हो गई, उनकी बीवी वो जो स्कूल में टीचर है वो पढ़ाती थी और मुझे नहीं जाने देते थे। क्यों नहीं जाने देते? मैंने उनसे लड़ाई की और मैं भी काम करने के लिए उनसे लड़ाई करके इस काम में आ गई और काम करते करते आज मैं भी 2-3 साल 2.5 साल से डिजिटल सखी का काम कर रही हूँ। काम करते करते आज मेरे गांव में बहुत पहचान हो गई, गांव के लोग मुझे पहचानते हैं और ये काम भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी। क्या और उसके दौरान मुझे पता चला कि हमें आगे क्या करना है। पहले जैसा घर पे ही बैठना है, आगे कुछ भी करना है। उससे पता चला कि मैं डिजिटल सेवा केंद्र खोल सकती हूँ और मुझे वो करना है। वो सेवाएं भी मैं आज गांव में देती हूँ, वो फ्री में है। उसके बाद मैडम जी ने हमें बोला कि शादी के बाद आपका जो डिजिटल सखी प्रोजेक्ट है उसके बाद आप घर पे ही बैठेंगे, ऐसा काम करो, ये केंद्र खोलो। उसके लिए हाँ ये भी मदद करता है हमारा प्रोजेक्ट और भी आपको ट्रेनिंग वगैरह मिलेगा। मैंने हाँ बोला और आज मैं वो काम करती हूँ। उसमें मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी मुझे मेरा जो डिजिटल सेवा केंद्र का काम है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है और मेरे बच्चों को भी पढ़ाना है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू थैंक मंगल। यू। थैंक यू। मंगल जितना अच्छा स्माइल करती है उतना अच्छा लड़ती भी है। घर में सबसे लड़के वो अभी अपना सेवा केंद्र हाँ। खोल। तो हर हर लड़की को थोड़ा सा कन्विक्शन से स्ट्रेंथ के साथ लड़के बेशक करना पड़े जो वो करते हैं, लेकिन एक बार जब आप कर लेते हो अब उनकी फैमिली इन्हीं से एडवाइस लेती है। इनकी फैमिली मेंबर्स भी अब इनसे एडवाइस लेते हैं अगर उनको कुछ ऑनलाइन कुछ सेवा चाहिए होती है तो थैंक जी हाँ, धन्यवाद। यू। ओके आसमा, आसमा अपने आप को हेलो मैम, हाय आसमा।
मेरा नाम आसमा है। मैं सोलापुर जिले से हूँ। मेरा गांव रायगांव है। मेरी एज 28 ईयर है, 28 साल की हूँ मैं। मैंने SY BCom तक पढ़ाई की है। मैं पढ़ाई कर रही थी तब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में ही रोक दी गई थी और मेरी शादी कर दी थी। फिर भी मैंने अपनी FY तक की पढ़ाई लोगों के घर में बर्तन मांज कर पूरी की थी। और FY में शादी होने के बाद मैंने SY पूरा शादी होने के बाद कंप्लीट किया था। मेरा सपना था कि मैं CA बनी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद मैंने SY BCom कंप्लीट किया वापस से। फिर मेरे उस दौरान मेरी 2 बेटियां हुई और यहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक न रहने की वजह से मैं दूसरों के खेतों में जाकर काम करने लगी। क्यों? तो ये गाँव रहने की वजह से मुझे दूसरा जॉब मिला नहीं यहाँ पे, जिससे मैं अपना घर चला सकूं। और मेरे शोहर भी काम नहीं करते थे, घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी छोटी बेटी जिसका नाम खुशी है, उसको मैं आंगनवाड़ी ले जाया करती थी। तो वहां पे एक आंगनवाड़ी सेविका थी जिसको मुझसे बहुत हमदर्दी थी। वो हमेशा कहती थी, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम कुछ क्यों नहीं करते? मैंने 2-3 बार उनकी बातों को टाल दिया। तीसरे से उनको कहा कि तुम देखो, कुछ होगा तो मैं करूंगी। तब उनके सामने अपना डिजिटल सखी का प्रोजेक्ट आया। उन्होंने, जो हमारे क्लस्टर मैनेजर है, उनको मेरा नाम बताया। लेकिन जब वो घर पे आए तब मैं घर पे नहीं थी, मैं खेत में काम पे गई वाली थी। खेत में काम जब सर घर पे आए तब हमारे सास ससुर घर पे थे। उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और होगा भी तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा कह के उन्हें वापस लौटा दिया गया। लेकिन फिर भी क्लस्टर मैनेजर, आंगनवाड़ी का सेविका ने उनका नंबर लिया और दूसरे दिन जब मैं खुशी को स्कूल छोड़ने गई तब मुझे वो नंबर दिया। मैंने कॉल किया। फिर सर आने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के जब मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम करो। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने अपने माता पिता को मनाया। फिर भी उन्होंने तैयार हो गए, लेकिन पूरे दिल से नहीं। बेटा कह रहा है इसलिए वो तैयार हो गए। फिर उसके बाद हम पुणे गए। पुणे में जाने के बाद शासकीय योजना की ट्रेनिंग ली। 5 दिन में डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की ट्रेनिंग दी गई हमें। उसके बाद वहां से आके हम गांव में काम करने लगे। डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट लोगों को सिखाने लगे, उनके अकाउंटिंग फॉर्म भरने लगे, उनके योजनाएं निकाल के देने लगे। उसके बाद मेरा उसके बाद अभी जब मैं डिजिटल सखी में लगी हूँ, हम 5 बहनें हैं। 5 बहनें होने की वजह से हमारे अब्बा ड्रिंक करते थे ना, तो अभी 5 बहनों में मैं बड़ी हूँ। अभी भी जब कोई मेरे बहनें, मेरे जीजी, उनको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बैंक में जाके करनी होती है, तो अभी भी मुझसे कॉल करके सलाह लेते हैं कि बाबा हमें ये करना है, हम कैसे करूँ। डिजिटल सखी होने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है और दूसरों को भी सिखाया है। इससे मेरे गांव में और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। और जो सास ससुर जो पूरे दिल से मुझे मंजूरी नहीं दिए थे, आज वो भी बहुत खुश है मेरे काम से। अभी मेरा एक सपना है कि मैं डिजिटल सेवा केंद्र डालना चाहती हूँ। मेरा डिजिटल सेवा केंद्र अपने गांव में एक भी डिजिटल सेवा केंद्र नहीं है, लेकिन होगा तो एक पहले लेडीज का होगा और वो आखिर तक चलेगा और 1 नंबर पोजीशन पर चलेगा। यही मेरा सपना है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग अभी दूसरों के यहाँ पे काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ, उन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ बस। और मुझे इसकी कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है, जिससे मैं ट्रेनिंग ले सकूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू आसमा। मैं जब भी आसमा की कहानी सुनती हूँ मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है ना। बचपन से काम किया है, अपनी पढ़ाई के पैसे दिए हैं, BCom कंप्लीट किया है, सबके अगेंस्ट जाके वो किया है जो इनको लगता था जो इनको करना चाहिए। कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर कुछ कर दिया और अब दूसरों के लिए भी कर रहे हो। आसमा, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। श्रीदेवी, श्रीदेवी आप हैं? श्रीदेवी, आई थिंक श्रीदेवी है ना यहाँ पे? श्रीदेवी, हाँ, हेलो।
नमस्ते मैम। हाय श्रीदेवी। हाँ हाय बोलिए। नमस्ते मैम। मेरा नाम श्रीदेवी राहुल शिंदे, मैं सोलापुर जिले से हूँ और मैं पिछले 2 साल से डिजिटल सखी प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और मेरा एजुकेशन बीए तक ग्रेजुएशन तक हुआ है। और ये प्रोजेक्ट से पहले मैं हाउसवाइफ थी और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और मेरे बचपन से मेरा सपना था कि मैं बहुत पढ़ लिख कर ये लॉ करके लॉयर बनना चाहती थी और वो सपना मेरा पूरा नहीं हो सका क्योंकि वो आने जाने की सुविधा नहीं थी। मेरे गांव से बहुत दूर था, इसलिए मेरा वो सपना पूरा नहीं हो सका। फिर मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मेरी शादी हो गई और फिर मुझे कुछ करना था कि मेरी शादी शहर में हो जाए। शहर में होने का मतलब मुझे एक शहर में बड़े से कंपनी में जॉब करना था और मेरे हस्बैंड भी मुंबई में बड़े कंपनी में जॉब करते थे और वो मैं भी दोनों कंपनी में जॉब करके आगे का फ्यूचर सोचकर और बच्चों को अच्छे शिक्षा देने का और अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने ये सोचा था कंपनी में जॉब करना, क्योंकि विलेज में शादी हो तो विलेज में ऐसा खेती के अलावा कुछ काम नहीं रहता था और मेरी शिक्षा का कुछ फायदा नहीं होगा ऐसा लग रहा था। और मुंबई में शादी हस्बैंड काम करते थे ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो गई और मेरा सपना अब पूरे होने वाला है ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ मुंबई में दो साल तक ही रही और मेरे हस्बैंड के दोस्त की शादी थी गांव में और शादी उसकी वजह से हम गांव में आए और गांव में फिर वापिस शहर नहीं जा पाए। हस्बैंड ने यही रहने लगे और मैं भी हस्बैंड यहाँ रहने के कारण मैं भी यही रहने लगी हूँ। और गांव में तो ऐसा काम वगैरह नहीं करने का चांस नहीं मिलता था। गांव में खेती के अलावा सिर्फ खेती का ही काम होता था। ऐसे में मैं अब हस्बैंड भी नहीं गांव का काम नहीं आता था और मुझे भी खेती का काम नहीं आता था और मैं क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन होने लगा और ऐसे इसी वजह से घर में अनबन होने लगी और घर के लोग भी बोलने लगे वो हस्बैंड भी कुछ कमाते नहीं आप भी कुछ कमाते नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, उसे समझा बुझा कर शहर भेजो। लेकिन हस्बैंड नहीं माने शहर जाने के लिए। फिर मुझे भी बहुत टेंशन आने लगा, मैं गांव में रहकर क्या करूं क्या काम करूं ऐसे बहुत सोचने लगी, टेंशन आने लगा, रोने लगी। मैं इतना बहुत पढ़ा है लेकिन मेरी शिक्षा का कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैं बचपन से ही सब में खेल कूद में और पढ़ाई लिखाई में सब क्षेत्र में मैं अव्वल थी, लेकिन इतने सर्टिफिकेट थे कि मेरे पास, मैं सब घर में कोई नहीं रहता था, वो सर्टिफिकेट देख के मैं बहुत रोती थी। इस सर्टिफिकेट के मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। अब मैं गांव में मेरा इस सर्टिफिकेट का क्या फायदा होने वाला। इसी दौरान मेरे गांव में एक डिजिटल सखी प्रोजेक्ट का कार्यक्रम आ गया और वो मुझे पता चला और मैं उसे नाम दिया और मैं ट्रेनिंग इंटरव्यू लिया गया मेरा और इंटरव्यू लिया गया कि मुझे सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट होने के बाद मुझे पुणे में ट्रेनिंग वगैरह मिला। उस ट्रेनिंग से मेरे खुद में बहुत बदलाव आया, रहन सहन में, बोलने के ढंग से सब। मुझे एक थोड़ा सा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आ गया मेरे काम करने में। गांव में भी अब बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, गांव के लोग भी अब बहुत सपोर्ट करने लगे हैं और लॉकडाउन के दौरान भी मुझे डिजिटल पेमेंट का ट्रेनिंग मिला तो बहुत फायदा हो गया लोगों का। मैं बहुत बिजली का बिल और रिचार्ज, मनी ट्रांसफर वगैरह बहुत करने लगा। मैं ये काम करने लगी हुई, लोगों को पता चला ये कर रही है काम। अब गांव के लोग भी कह रहे हैं वो तुम डिजिटल सेवा केंद्र डालना चाहती हो, हम पूरा आपको सपोर्ट करते हैं। वो गांव में ग्राम पंचायत रहता है ना, वो भी सब बोले हैं कुछ तो आप ऑनलाइन काम रहता है तो दूसरे का पड़ता है, तो आप ये गांव में कर रही हो तो हम पूरा सपोर्ट करने के, आप बहुत अच्छा कर रही हो, करो, हमारा पूरा सपोर्ट है, ऐसे बोलने लगे हैं। इसी
मैं जीवन में बहुत संघर्ष किया है मैम, लेकिन मैं मायके में मुझे ऐसा कोई भी दुख नहीं मिला, लेकिन ससुराल में बहुत सहना पड़ा। सहने से ही मैं अब तक यही पहुंची हूँ, ऐसा लगता है। कुछ सहने से ही अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये सेवा केंद्र में भी जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाई परेशानी आती है, वो मेरे मैडम से, सर से पूछती हूँ और वो सॉल्यूशन निकालती हूँ। ऑनलाइन पेमेंट में भी मुझे अभी बहुत ट्रेनिंग लेना, कम्युनिकेशन चाहिए, और मुझे काम करने वक्त थोड़ी सी परेशानियां भी हुई। गांव में घूमना, जो अच्छे ही लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचकर मैं काम करने लगी। मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, समाधान। और मैं आगे से भी बहुत गाँव में और मेरा नाम मैं बनाना चाहती हूँ, और मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी और अच्छा शिक्षा देना चाहिए आगे, और जो नहीं मिला वो सब देना चाहती हूँ, ऐसा। और औरत घर के चार दीवारों के बाद बाहर निकालने से ही, अपने आप को साबित करने से ही, ऐसा ये कर सकती है। घर में भी तो आदर मिलता है। ऐसे मुझे ये पिछले बार में नहीं बताई थी मैम, मैं कुछ कमाती नहीं ऐसा घर में बोला गया था, तो मैं वही बात दिल पर लेकर एक पूरा साल तक दिन भर सास बोलकर जाती थी खेत पे, सब काम खत्म होने के बाद तुम खाना खा के बैठो। तो मैं वो बात ही दिल पे ले गई थी कि वो कुछ काम नहीं करती, इसका मतलब मैं सोचती थी। और मैं दिन भर रोटी या चपाती कुछ भी नहीं खाती थी। सास आकर बोलती थी खाना वगैरह खाया कर, हाँ बोलती थी, लेकिन मैं रात को बस सिर्फ थोड़ा सा चावल खाकर ही सोती थी। ऐसा मुझे बहुत ये करना पड़ा। फिर वो ये काम करने के बाद मुझे अच्छा, अब याद करके बहुत मुझे आंख में आंसू आता है। वो सब किया है, ये दिन मुझे देखने मिला है। अभी आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और मेरी लड़की को भी, मेरी एक लड़की है और एक लड़का है, उसे भी मैं बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ, आगे बढ़ावा देना चाहती हूँ। वो सिंगिंग बहुत अच्छी करती, उसे सिंगिंग में डालना चाहती हूँ। वो सब अच्छा करना चाहती है। इसलिए मेरा मानना है कि ये काम करने से सब घर में भी बाहर में सब आदर मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। वो मैं करके दिखाती हूँ। सेवा केंद्र डाल, किसी का नहीं चल रहा ऐसा मैं करके दिखाऊंगी, और मेरा अस्तित्व बनाना, एक सक्सेसफुल स्त्री बनना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम, थैंक यू। थैंक यू श्रीदेवी। हाँ, आपने ये नहीं बताया था मुझे कल, बट श्रीदेवी आज 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 2 दिन के बाद आज वो मुस्कुराई हैं, तो मतलब आज उन्होंने दिल से सब निकाल के बोला है, पूरे दिल से बोला है। थैंक यू सो मच श्रीदेवी। और मैम आज तक मुझे एक कहानी बताने की मुझे किसी से मालूम नहीं था, लेकिन आप इस कार्यक्रम की वजह से मेरी कहानी बताने का मुझे मौका मिला, तो मुझे बहुत खुशी हो गई ऐसे कहानी मेरी खुद की बताने के बाद। आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। आपसे बहुत लोगों को स्ट्रेंथ मिलेगी जो भी सुन रहे हैं। आपके बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं जिनको ऐसी मम्मी मिली है जो उनके लिए सबसे पूरी दुनिया से लड़के आगे बढ़ रही हैं। और आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत सक्सेसफुल होगे, आप बहुत आगे जाओगे। स्माइल ज्यादा किया करो। 2 दिन स्माइल नहीं किया, आज 3rd डे, पहले दिन स्माइल किया है। हाँ, थैंक यू श्रीदेवी, थैंक यू सो मच। शुभांगी जादव। नमस्कार मैडम, मेरा नाम शुभांगी संजय जादव, मैं उस्मानाबाद क्लस्टर से महांगी गांव से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक हुई है। और मुझे बचपन में एकेडमी ज्वाइन करके पुलिस बनना था, पर मैं बन नहीं सकी क्योंकि मेरे पिताजी का पीठ का ऑपरेशन हुआ। इसलिए मुझे बड़े बेटे हम 3 बहनें थे, बड़े बेटी जैसे परिस्थिति संभालता है वैसे संभालनी पड़ती थी, और वो मैंने किया। फिर मेरी पढ़ाई वही रुक गई। 18 साल
के बाद 18 साल के बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद घर का काम, खेती का काम, बच्चों को संभालना, यही चला रहता था। जैसे कि मेरा कुछ अस्तित्व है यही भूल गई थी और काम करके आगे बढ़ रही थी। और फिर एक दिन हमारे गांव में, हमारे क्लस्टर में पहला डिजिटल सखी का प्रोग्राम हुआ है बेमुई गांव में। उस गांव से डिजिटल सखी हमारे गांव में आई और उन्होंने बोला डिजिटल सखी का प्रोग्राम आया है। तो मैंने हाँ तो बोल दी, पर उन्होंने पूछा पढ़ाई कितनी तक हुई है तुम्हारी, तुमको स्मार्ट मोबाइल चलाना आता है क्या नहीं, पर ऑनलाइन व्यवहार के बारे में जानती हो क्या नहीं। मुझे कुछ मालूम नहीं था, तभी भी मैंने बताया की मुझे मालूम है। मोबाईल थोडं मराठीतून बोलते। मोबाईल वापरत होते, पण मोबाईल वापरत होते, पण त्यामध्ये मला ऑनलाइन व्यवहार कधीच मी बघितला नाही। दुसऱ्या सीरीज ते देखती थी मैं, मुझे मालूम नहीं था। फिर मैं इंटरव्यू को गई। इंटरव्यू को जाने के बाद हमारे गांव में 10 महिलाएं मेरे साथ आई। उनका शिक्षण बहुत था। मुझे लगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ऐसा लगा मुझे। फिर भी मैं गई क्योंकि मुझे घर के सब लोगों का साथ मिला, इसलिए मैं आगे पहुंची। फिर मैं इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऑनलाइन व्यवहार नहीं आता, स्मार्ट मोबाइल नहीं चलाना आता। फिर भी मैंने कोशिश की और मेरी बच्ची 9 महीने की थी, तो उन्होंने बताया ट्रेनिंग को जाना पड़ेगा पुणे को। बहुत बुरा लगा। फिर मेरे सासू माँ ने कहा कि मैं बच्ची को संभाल लूंगी, आप जाओ। फिर मैं ट्रेनिंग को गई। ट्रेनिंग के आने के बाद मुझे कैसे बात करना चाहिए सबके बारे में पता चला। और फिर मैंने 2 साल से डिजिटल सखी प्रकल्प में जुड़ी हूँ। और डिजिटल सखी प्रकल्प में जुड़ी होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं अपना डिजिटल सेवा केंद्र गांव में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि गांव को लोगों का पास के गांव में जाना पड़ता है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। और मुझे मैनेजमेंट और लोगों को कैसे बिजनेस कैसा बढ़ाना है, लोगों को अपनी तरफ कैसे बात करके ही बोलना है, यही चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू शुभांगी, थैंक यू सो मच। कभी आई और थिंक एक बात बोलना चाहती हूँ मैडम ने, मेरा डिजिटल सखी के प्रकल्प के पहले मेरा बच्चा बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसको, और मेरे खाते में पैसे भी थे और एटीएम भी था मेरे पास, पर बच्चे को छोड़कर मैं एटीएम में पैसे निकालने जा नहीं सकती थी। और कार्ड स्वैप करके बिल भरा सकता है, मुझे मालूम नहीं था। मेरे पति को मैंने बोला डिस्चार्ज तो दिया है, बिल कैसे भरना है, तर उन्होंने बोला मैं आऊंगा 5 बजेंगे, मुझे तब तक वही रुकना। मैं 5 बजे तक वही रुकी, फिर बिल भरा और आई। और डिजिटल सखी के प्रोग्राम में आके फिर मेरा एक बार बच्चा बीमार हुआ और मैंने खुद पति की राह न देखते हुए बिल पे किया, कार्ड स्विप करके बिल पे किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और माझा टाइम पण वाचला, इतकी वेळ वाट बघायची गरज नव्हती मला। थैंक यू मैडम। थैंक यू शुभांगी, थैंक यू सो मच। आप सब पता है, आप सबकी कहानियां सुन के मतलब थोड़े से आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बहुत इंस्पायर हुए, लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग चीज ये है कि इन सब ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। काफी लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट की है शादी के बाद, जो बहुत अमेजिंग है। आप जो सब कर रहे हो, लड़के कर रहे हो, कन्विंस करके कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए फैमिली को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। आपके सबके इंटेंट बहुत स्ट्रांग है कि बच्चों को भी वैसे ही बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, और कईयों की लाइफ में आपकी सासू माँ भी आपका साथ दे रही हैं, आपके हस्बैंड साथ दे रहे हैं। तो उन सबको आज वापस जाके हमारी तरफ से थैंक यू बोलिएगा कि उन्होंने आपको आपके साथ आपका हाथ पकड़ के उन्होंने आपके साथ आगे बढ़ने का एक चांस लिया। वो बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। सो अभी आई थिंक हमने सब 10
डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां सुन ली हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट है जहां हम अब ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने बहुत लेट लाइफ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के अपना खुद का काम शुरू किया। अब हम एनजीओ चलाते हैं ये, और मैं एक फिल्म मेकर हूँ, योगा सिखाती हूँ। तो मेंटरशिप बहुत बड़ा हिस्सा था मेरी ग्रोथ का भी और मेरे काम का भी। मैं जहाँ पे आज पहुंची हूँ, अगर मेरे मेंटर्स नहीं होते, मेरे बॉसेस नहीं होते जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो छूट दी है कि मैं खुद गलती करके सीखूं, मेरे ख्याल से आज मैं वो सब नहीं कर पाती जो मैंने आज किया है। तो अगले 40 मिनट हर ब्रेकआउट रूम में 2 डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स होंगे और एक मेंटर होंगे। आप अपनी कहानियां उनको बताएंगे, आपके चैलेंजेस बताएंगे। कहानियां आप सब सुन चुके हैं, आप संक्षेप में उनको चैलेंजेस बताएंगे और फिर उनके साथ बातचीत करेंगे कि वो कैसे आप उन चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप वो सब बात करेंगे। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि उन्होंने क्या किया लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसे, उसके बाद कैसे गए। तो फॉर द मेंटर्स, ये जितनी आप आज डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की आपने कहानियां सुनी है, इनको एक इनिशियल ट्रेनिंग ऑलरेडी सीएसआर ऑफ एल&टी फाइनेंस ने दी है, लेकिन अब हमें इनका हाथ पकड़ के इनको गाइड करना है। अब वो नॉलेज को ये आगे कैसे ले जा सकते हैं और सस्टेन कैसे कर सकते हैं एक बिजनेस मॉडल में, बिकॉज अब ये सब अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहती हैं। तो उसके लिए सिर्फ वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज काफी नहीं है जो इनको ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन इनको अभी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अगले 2 महीने में, आज बात करके, वो अब हम मेंटर्स के ऊपर है। सो 40 मिनट्स के लिए अभी हम वो करेंगे। एंड लता, राधा, गौरी, संजय, रुफीना, ये सब एक एक ब्रेकआउट रूम में होंगे। क्योंकि मैं कहानियां जानती थी तो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको क्लब करूं इस हिसाब से कि आप जितना ज्यादा निकाल सकें, उससे सीख सकें, अपने मेंटर से वो सीखें। तो वो क्लबिंग उस हिसाब से की गई है। और मैं एक और बार, आई थिंक रश्मि को मैंने हाय नहीं बोला इससे पहले, बट रश्मि, थैंक यू सो मच। अफाम ने बहुत अच्छा काम किया है जो इन इन लेडीज को रूरल इंडिया में जाके यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. I'm थैंक यू। audible? Yeah. रश्मि, you wanted to say something? I'm sorry, Yeah, actually ये जो सारी सखियां हैं, ये और इनके साथ में और 100 सखियां हैं जो यहाँ पे शायद नहीं जुड़ी इस प्रोग्राम में। ये रिप्रेजेंट करती है उन 100 सखियों को भी, और जो पिछले प्रोग्राम में थी वो 100 सखियों को भी। तो मेरे हिसाब से सभी की कहानियां ऐसी ही कुछ है, शायद इससे भी और ज्यादा इंस्पायरिंग है, कुछ इससे भी ज्यादा। और आगे कुछ डिजिटल सखियों ने ये प्रूव कर दिया है कि वो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है या सेवा केंद्र चला सकती है, जो पुराने वर्किंग एरिया में हमारी थी। तो मेरे हिसाब से ये जो मैं आशा करती हूँ कि ये अभी 3 महीने का जो प्रोग्राम हमारा चलेगा, उसमें ये इस तरह से उभरेंगी कि ये सभी के लिए एक इंस्पिरेशन साबित होंगी। और ये जो कुछ सीखेंगी वो बाकी सखियों को भी सिखाएंगी और हम लोगों को भी सिखाएंगी। So yeah, I'm very much looking forward to your program. Thank you, Rashmi. Thank you so much. I think everyone is very inspired. सबकी कहानियां सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिली है। अभी सब जानना चाहेंगे उनके मेंटोर्स कौन है, राइट? तो ज्योति, आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आप सबको ब्रेकआउट रूम में भेज दीजिए प्लीज। Sure, Supreet. So I'm opening the rooms. Yes, please. So we are saying
So I think everyone is back. Jyoti, is everyone back? Do we still have some? I'll just check. Most of the people are back. Yeah. Okay. Okay. All right. So welcome back. Elsa had some emergency, so she won't be able to. She's online, but she won't be able to come and speak right now. But I mean, I think it was the group that I was in, just breakout room में मैं थी. मैं हिंदी में ही बोलूंगी क्योंकि बहुत important है कि जिनके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है वो समझें कि हम बात क्या कर रहे हैं. तो मेरे रूम में मराठी में बात हो रही थी और आज मेरे को कुछ नया सीखने को मिला है. मेरी मराठी बहुत खराब है, खैर आती नहीं है, लेकिन आज संजय, रेशमा और महादेवी से मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है मराठी. सो हम लोग थोड़ा सा शेयर करते हैं जो मेंटर्स थे ब्रेकआउट रूम में. क्या आप लोग कुछ शेयर कर सकते हो अपने ब्रेकआउट रूम में? व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस? कैसे चैलेंजेस हैं? देयर माइट बी लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. हो सकता है कई लोगों की के चैलेंजेस सेम हैं, क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रही थी कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, ये कुछ चीजें थी जो सबके पास थी, जो सब सीखना चाहते हैं. तो कोई बताना चाहेगा ब्रेकआउट रूम से? कोई मेंटर कुछ शेयर करना चाहेगा? Yeah, can I start? Because Yes. I have a good news to share. Please go ahead. So we've got a good news because one of our, Tabu wanted to, talk about getting some training on technical training on Photoshop and cut, copy, paste and all of that. And we had a very kind offer from Shabir, who offered to do a technical training because they have a training facility and an organization. And he's agreed to take a training for the Sakis on this. And so we want to give a big round of applause to Shabir, because Shubhpreet and Richa, you all will have to work this out. Sorry, let me say it in Hindi. Shabir साहब हमारे he's a वो doctorate है in digital marketing. So is that right, Shabir? Yeah. Sorry, the voice cracked. I said you're a doctorate in digital marketing, right? I've just finished my PhD in digital marketing. There you go. तो मैंने अपने हिंदी में बताया कि वो हमारे मतलब बहुत बड़े ज्ञानी हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसलिए उन्होंने बहुत बड़े दिल से ऑफर किया है कि वो ट्रेनिंग करेंगी सखीज को. तो सुप्रीत और रिचा प्लीज ये ऑफर को प्लीज यूज करो. Yes, definitely. एंड इनका ये 3 साल का ऑफर है. हाँ. Oh, wow. नहीं वो मैंने बोला. थैंक यू सो मच. मुझे इसी साल चाहिए. 3 महीने तो कम से कम रहेगा है ना शबीर? बिल्कुल. नहीं, और सिर्फ इन 10 लोगों को नहीं शब्बीर जी, मुझे बाकी लोगों को भी देना है, इसलिए आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप सभी ये ऑनलाइन है. सो हाँ, ऑनलाइन ही हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे ऑनलाइन. हाँ, तो उन्होंने किया है, तो अभी जरा उसका आप ले लो. तो वो एक गुड न्यूज देनी थी हमको. थैंक यू सो मच. वो एक थी. द सेकंड वाज हमारी 2 सखियां, एक तो केंद्र चलाती है और दूसरा जॉब करना चाहती है, तो उसका भी हम देख लेंगे. मतलब ऐसा नहीं कि सखी सबको केंद्र चलाना होता है, तो अगर जॉब भी कराना होगा तो शायद उनको बताना पड़ेगा कि रेज्यूमे कैसे करते हैं, कहाँ से फ्लोट करते हैं, किस को जाके मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं. तो वो एक चीज हम सोचे कि आगे जाके करेंगे. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ये था कि वो कनेक्टिविटी इश्यूज भी होती है. तो कनेक्टिविटी इश्यूज में सिंस मैं टेलीकॉम सेक्टर से काम में, मतलब मेरा काम टेलीकॉम सेक्टर में है, मैं वही उनको बता रही थी कि उन्होंने जो लोकल जो टेक्नीशियन होती है जो टेलीकॉम के जो आते हैं वहां पे, जो टावर का काम करता है या जो भी है, वो बंदे को पकड़ के उनके लोकल ऑफिस में अगर वो अर्जी डाल सकते हैं कि एक बूस्टर लगाए,
तो वो उनके मतलब उनके प्रोसेस में ही आता है, बट उनको ही पकड़ना चाहिए। और जैसे कि ये रूरल एरियाज में क्लस्टर मैनेजर जैसा है, तो टेलीकॉम में भी क्लस्टर मैनेजर जैसा होता है। तो अगर उनको वो कांटेक्ट करे एंड वो बूस्टर लगाने की कोशिश करे, तो अगर केंद्र ग्राउंड फ्लोर पे, ज्यादा करके ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है और कनेक्टिविटी टेरेस पे होता है, तो अगर बूस्टर लगाएंगे तो वो पूरा एरिया को भी हेल्प हो जाएगा उनके गांव में। तो वो भी एक करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज जो बात सामने आई, और थोड़े मार्केटिंग टिप्स आए थे कि हम कैसे फुटफॉल्स ज्यादा करें। सो हाउ डू वी, मतलब क्या करना चाहिए। तो हमने वही कहा कि ट्राई टू ऑफर मतलब ऐसा रिलेशनशिप बनाओ कि जिसपे अगेन वी सेड ट्रस्ट, व्हाट डू यू से अगेन, आई मिस दैट वर्ड, विश्वास। हाँ, विश्वास जरा बढ़ाए अपने जो लोगों से, क्योंकि सब गांव वाले ही है, तो वो भी आपका सब वो भी जानते हैं आपके बारे में और तुम उनके बारे में जानते हो। तो थोड़ा सा वो दूर दृष्टि रख के वो रिलेशनशिप करो। ऐसा नहीं कि हाँ अभी इधर अभी आ गए चलो, क्योंकि हमको भी सब सस्ता टिकाऊ चाहिए ना। तो जब भी वो आपके दुकान में आते हैं तो उनको भी सस्ता टिकाऊ चाहिए ना, तो वो आपने सोचना चाहिए कैसे होगा। तो देन वैसे दैट इज द समरी ऑफ आवर संक्षिप्त में। थैंक यू रुफीना। आई नो हिंदी में बात करना मतलब थोड़ा सा सबकी क्लास लग रही है ना आज, सिर्फ मेंटीज की नहीं। नहीं, मेरी हिंदी मराठी इज क्वाइट, आई एम प्राउड ऑफ इट। सो दे डिडंट, मैं वही बोला उनको कि तुम लोग ने बोला नहीं कि तुमको इंग्लिश में सीखना है, तो हम वो भी कर लेते। हाँ, सीखना है मैडम। क्योंकि वो ना गांव में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इंग्लिश सीखे ना, तो आपके केंद्र में बहुत लोग आएंगे तुमसे इंग्लिश सीखने को। तो सोचो, आपने अलग से सोचना चाहिए। नहीं, सीखना है मैम। ऑलराइट, मे बी हम लोग कभी एक मास्टर क्लास इंग्लिश में भी ले सकते हैं। सो रिचा वील वर्क ऑन दैट with somebody. But thank you, definitely. Yeah, thank you Rufina, and thank you Sabir. You've written to Elsa and I have your email ID and your mobile number, so we will reach out to you as well, take you on your offer. Thank you so much for being so gracious. Anybody else, any other mentor, कोई और share करना चाहेगा, कोई और mentor किसी और breakout room से? मैं share Gauri. Gauri? Am I audible? Hi, yes. Yeah, can you hear me? Yeah, Gauri, go ahead. No, Gauri Kachevikar. I think there are two Gauris, sorry. Yeah. Go ahead, Gauri. Okay. हमारे इसमें बेसिकली दोनों सखी को यही था कि कैसे जोड़े जाए, नए बिजनेस कर रही है तो कैसे उनको शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या पिटफॉल्स होना चाहिए। तो उनके क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग थे, उन्होंने बहुत दूर की सोच के रखा है। तो दैट्स अ रियल हैप्पी सिचुएशन कि उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स भी सोच के रखी है। मन की ये भी तैयारी है कि अगर जो वो शुरू करने जा रहे हैं वो नहीं चलता है तो व्हाट नेक्स्ट, प्लान बी। तो इन अ वे दे आर आल्सो रेडी फॉर फेलियर आता है तो भी उसकी तैयारी कैसे शुरू होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था, उनके सवाल भी बहुत अच्छे थे। एंड हमारे इसमें थोड़ा डायलॉग कम था बिकॉज कुछ लोगों को कुछ कनेक्शन में दिक्कत हो रही है, बट उनके सवाल काफी अच्छे थे। तो दैट्स व्हाट वाज आवर डिस्कशन। थैंक यू गौरी। हाँ, मतलब सबकी कहानियां इतनी अच्छी हैं, इतनी इंस्पायरिंग है, लेकिन इन सब ने आगे की भी प्लानिंग करके रखी है। मतलब हम बेशक सोच रहे हैं हम 4 चीजें इनसे शेयर कर सकते हैं, इनको ऑलरेडी पता है उनको 5 और चीजें क्या सीखनी है हमसे। तो आई थिंक दे आर ग्रेट स्टूडेंट्स, they are great business people and they are going to be brilliant entrepreneurs. Thank you गौरी। संजय, आप शेयर करेंगे कुछ? यस उसमें से कि जो भी डिस्कशन हुआ ना, तो मुझे अच्छा लगा कि जब भी मैं बात करता तो बोला नहीं ये ऑलरेडी हमने किया है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्यों कर रहे हैं।
ये बड़ी अच्छा, ये सबसे अच्छा मुझे। उसमें से दूसरा एक बात है कि जैसे रेशमा की अगर बात करें तो उसमें वो 3 बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर होना चाहिए कि वो टेलरिंग में काम करने वाले हैं या केक जो बनाते उसमें काम करने वाला है या सखी डिजिटल में जाना है। ये थोड़ा उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आगे जाके क्या करना है वो छोड़ के। और महादेवी का भी मैडम का भी वही है कि वो एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं और वो खुद का वेजिटेबल का कुछ ऐसा काम है उनका। और तो ये थोड़ा उनको एक कंफ्यूजन है, वो थोड़ा क्लियर करना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो बाकी ओवरऑल सब ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी जो है उनके पास में वो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है वो। ओके, थैंक यू। थैंक यू संजय। हाँ, बहुत पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से ये मेंटरिंग प्रोसेस में वो भी क्लियर हो जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं और किस तरफ जाना चाहते हैं। आई थिंक कई चीजें होती हैं जो उन्होंने भी शायद सोची नहीं है इतनी ध्यान से, जो नेक्स्ट 2 महीने में आई होप कि हमारे मेंटर्स उनके साथ काम कर सकते हैं वो क्लैरिटी के लिए भी। थैंक यू संजय। लता, would you like to share? Hi. Yeah, hi everyone. So we also had quite a lot of excitement. पहले तो ये बताऊं कि मेरे साथ जो भी थे सब यही कह रहे थे कि उनको अस्मा, स्वाति और बाकी जो हमारी महिला एंटरप्रेन्योर्स है उनसे सीखना है, जहाँ की बिकॉज उनकी जो आत्मविश्वास और जो साहस की जो जिस हिसाब से वो बात कर रही थी, तो आत्मविश्वास काफ़ी है सब में। तो मेन चैलेंजेस उनका तो कॉमन चैलेंजेस था। पहले तो ये दोहराया कि घर की जो फैमिली की सपोर्ट एक तो, और घर को भी चलाना है और बिजनेस को भी चलाना है, तो दोनों की जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये कैसे मीट किया जाए, तो वो तो एक था। दूसरा था कि बिकॉज इन लोग महिला हैं और है तो आखिर रूरल या गांव से, तो गांव में जो माहौल है ज़्यादातर महिलाएं काम नहीं करती है, दूर है कि बिजनेस चालू करें, तो थोड़ी बहुत उनको झिझक थी कि कैसे अगर वो महिला है तो कैसे वो आगे बढ़े। तो हमारे साथ काफ़ी जो थे काफ़ी महिलाएं भी थी, तो मेन तो यही था कि उनका जो आत्मविश्वास अभी है अगर वो मेंटेन करे, तो जैसे किसी ने आई थिंक जयश्री ने बताया, कुत्ते तो भौंकते हैं तो भौंकते ही रहेंगे तो उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना है, यही एक लक्ष्य रख के उनको आगे जाना है। तो आई थिंक आसमा और स्वाति को काफ़ी उससे दिलासा मिला है। दूसरा मेन उनका जो चैलेंज था बेसिकली बिजनेस रिलेटेड है। तो अभी दोनों शायद अभी डिजिटल सेवा केंद्र या डिजिटल सखी के माध्यम से काम कर रहे हैं। उनका एम्बिशन है कि वो खुद की डिजिटल सेवा केंद्र चालू करें। तो जो अभी की जो आमदनी है, मतलब लाइवलीहुड है, बेसिकली लाइवलीहुड है, उसको 15,000 या 20,000 तक कैसे बढ़ाया जाए थ्रू द डिजिटल सेवा केंद्र, ये उनको थोड़ी बहुत चैलेंज लग रही है, क्योंकि थोड़ी इनसिक्योरिटी है उसको उनमें। बिकॉज अगर वो अभी तो हाथ में मिल रहा है उनको सैलरी टाइप पैसे, लेकिन अगर वो खुद की जो बिजनेस टाइप डिजिटल सेवा केंद्र चालू करे तो एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि आपको स्टेडी इनकम या वो मिलती नहीं रहेगी, तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी उसमें। तो उनका है कि एक तो उनको अगर ट्रेनिंग मिले, बहुत कम्युनिकेशन और डिजिटल टेक्निक्स में ट्रेनिंग मिले, और सबीर ने अभी बताया तो बहुत बढ़िया होगा सबको। दूसरी है कि बिजनेस प्लानिंग कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रोजेक्ट प्लान कैसे किया जाए, ये थोड़ी बहुत उनको टिप्स मिलेगी, तो उनको लग रहा है कि थोड़ा बहुत और उनका जो आत्मविश्वास अभी और बढ़ जाएगा। थैंक यू लता। मतलब इतनी हिंदी मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे शब्द बड़े बड़े एक साथ इस्तेमाल नहीं किए। आत्मविश्वास, आमदनी, दिलासा, मतलब एक मतलब योर हिंदी इज बेटर देन माइन। प्रधानमंत्री इंस्पायर्ड। बट
Yeah, I mean everyone सबके सब इतना कुछ कर रहे हैं ना कि उनसे काफी चीजें सीखने को मिल रही है। जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की है अभी तक जैसे आए हैं यहाँ तक और आगे कहाँ जाना है, हर किसी की अमेजिंग है कहानी। और ये पिछले 40 मिनट्स में आई थिंक काफी कुछ हम लोगों ने सीखा एज मेंटर्स कि ये ऑलरेडी कहाँ पहुंच चुके हैं, हम किस लेवल पे हमें इनको और आगे लेके जाना है। सो थैंक्स लता। राधा, आर यू देयर? I'm there. Okay, so we were actually really हम लोग बहुत ही डिस्कस कर रहे थे तो टाइम खत्म हो गया। तो मुझे जस्ट थैंक यू बोलना है मंगल, शुभांगी को एंड पायल और कैरन, राजा जी एंड रश्मि। तो हम लोग का भी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। हम लोग ने सेशन को 2 हाफ में बांट दिया कि मंगल ने पहले बताया आप उसकी क्या प्रॉब्लम थी, फिर शुभांगी ने बात की। तो बेसिकली similar type of issues, computer skills, new skills का knowledge कि schemes जब नए आते हैं तो उसका क्या कर सकते हैं, financial help, business setup करने के लिए या जो भी हो, थोड़ा सा financial advice, how to go beyond just the Kendra, how to increase the business, एनी गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम लोग ने बताया कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं स्टैंड अप इंडिया में या विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अगर उसका कुछ सम सॉर्ट ऑफ सेशन वी कैन हैव विद देम फॉर ट्रेनिंग। बेसिकली हाउ टू इंक्रीज बिजनेस। क्या होता है कि रश्मि टोल्ड अस दैट दे हैव अ टारगेट ऑफ मीटिंग 1000 पीपल, लेकिन कन्वर्टिंग दैट इनटू बिजनेस apparently under the digital circuit program, the services are given free for some time and then you have to convert them into paid services. तो वो फ्री से पेड कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, किस चीज के लिए चार्ज करना चाहिए, कौन से सर्विसेज फ्री होने चाहिए, तो ये सब हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है। और बहुत सखियां पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनको सिंस वो घर में थी उन्होंने बिजनेस किया नहीं है, बहुत फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रही हैं। बहुत लोगों ने ऑपोजिशन है, तो वो सब चैलेंजेस सरमाउंट करके वो लोग बिजनेस में आए हैं। तो उनको थोड़ा ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है। सो जो थियोरी सिखाते हैं हम लोग और जो प्रैक्टिकलिटी होती है उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। तो वो जो गैप ब्रिज करना है ना, सॉरी माय हिंदी इज हाफ इंग्लिश, मेरी 90% इंग्लिश, तो वो जो गैप ब्रिज करना है ना उसके लिए आई थिंक थोड़ा सेंसिटिव हैंड होल्डिंग एंड लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आई लव दैट आइडिया कि इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रहे हैं, ब्रिलियंट। शायद विलेज में इतना जरूरत नहीं है इंग्लिश का, लेकिन इट इज एन एडवांटेज टू हैव अ लैंग्वेज। आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, आप सीखो दूसरों को सिखाओ। सो दैट वाज, सो वी हैड अ रियली गुड सेशन। एक चीज और राधा, मतलब इंग्लिश सिखाने से मैंने ये भी देखा है कि मतलब उनका ओहदा जो होता है ना वो और बढ़ जाता है, मतलब काइंड ऑफ यू नो बहुत ही बढ़ जाता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड दिस थिंग दैट देखा जा सकता है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं भोपाल में पली बड़ी हूँ, मेरी हिंदी इतनी खराब हो गई अब कि कोई यकीन नहीं मानेगा, लेकिन हम लोग हिंदी ही बोलते थे इवन दो वी आर नॉट एथनिकली फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग। आई एम हाफ महाराष्ट्रियन हाफ मलयाली, लेकिन हम लोग घर में हिंदी बोलते थे। और जो इंग्लिश बोलते थे ना हम लोग बोलते थे अरे वाह ये क्या मस्त, ये तो शुई बात कर रहे हैं। लाइक देयर वाज अ स्टेटस सिंबल to be able to speak English. So yeah, you're right. English is an advantage. Yes, and I think there are a lot of काफी suggestions आए हैं site पे chat box में। I think थोड़ा सा उनको entrepreneurship management भी सिखाना I think important है। So before people, I know कुछ लोग जा भी रहे हैं, we are little over time also. बट अगर कोई चाहता है कोई मास्टर क्लास देना, किसी का स्किल है अगर जैसे सभी दे रहे हैं, तो इफ somebody wants to give that, offer that master class of that skill of management, entrepreneurship, anything that English maybe, so please write to us. Elsa and my email IDs are in the chat box. Please write to us and we will take it forward, because next अगले 2 महीने हम काफी कुछ करेंगे इन entrepreneurs के साथ उनके लिए। And we can always plan कि हम कोई master classes भी रखें जहाँ से everyone learns, you know. So please write to us. I think this is great and I hope और भी लोग आए सामने और अपने skills offer करें, because I think consolidate करके we can really make a fast forward kind of a program for these Sakhis over the next 2 months. So
So thank you for that. And I know time is over, लेकिन हम बात कर सकते हैं और भी बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन Elsa नहीं है, तो I'm going to close now. Is there anything that anybody wants to say? Rufina. I just quickly just tell सखी, आप सब सखियों क्या करना चाहिए, शुरू करो गूगल पे जाके रोज एक इंग्लिश शब्द, कोई भी एक इंग्लिश शब्द आप सीखने को शुरू करो, कैसे बोलते हैं और उसका मीनिंग क्या है, रोज एक शब्द, और इंग्लिश के लिए एक बुक रखो, कुछ नहीं है, गूगल पे जाओ एंड से हाउ टू, इसको बोलते कैसे है और इसका मीनिंग क्या है, रोज एक शब्द सिर्फ सीखो, ठीक है, और देख लो क्या है, क्यों खुद अगर शुरू करेंगे सीखना, ना कि किसी को वेट करे कि हाँ ये आएगा वो आएगा, वो एक चीज आप कर लो। एंड दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबको, कि जो आपको चाहिए पहले आप उससे उस पे फोकस रखो, और उसके पीछे जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिले पूछते जाओ जो भी होगा। आप जब तक नहीं पूछेंगे कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका है, वो इश्यू आपका है, तो आप उसको एकदम नजरअंदाज मत करो, ठीक है। सिर्फ ये दो चीज मेरी तरफ से। थैंक यू रुफीना। एंड क्लोजिंग से पहले थैंक यू रिचा एंड LNT कि आपने ये शुरू किए प्रोग्राम। आई थिंक बहुत ज़रूरत है रूरल इंडिया में, हमें जितनी भी और औरतें हैं, लड़कियां हैं, आई थिंक उनको आगे बढ़ाने के लिए दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। और मैं भी इंग्लिश में थोड़ा स्लिप करती रहूँगी, कुछ शब्द नहीं आते मुझे हिंदी में। So thank you Richa, thank you Swedish alumni. It's always great. I'm not a part of the alumni yet, but it feels like I'm part of the family because all of you are such great friends and you're always supporting all our causes and our events. Thank you once again, and thank you Rashmi and Afam. आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है। आपने देख लिया होगा जितने लोग यहाँ पे आए हैं, हर किसी को सिर्फ कुछ अच्छा ही कहना है और अच्छा ही बोलना है आपके एफर्ट्स के लिए। So thank you very much. Elsa और मेरे email IDs chat box में हैं, please go ahead and write to us। अगर कोई मास्टर क्लास देना चाहता है, कुछ भी कोई भी स्किल है जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, प्लीज राइट टू अस। एंड विद दैट बिफोर वी क्लोज, एक ग्रुप फोटो खींचे हम लोग, वीडियोस ऑन करेंगे सब, एक ग्रुप फोटो खींचेंगे। Thank you Supreet and Elsa for organizing this, the fabulous concept. I think एक शुरुआत तो grassroots learning से हो जाता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि mentors urban area के सखी से मिले और आपस में learning हो। और we are really looking forward to this 3 महीने की mentorship for the सखीज। So thank you so much you guys। Yeah, thank you Richa। and एक फोटो लेते हैं। हाँ सबके वीडियोस ऑन है। Okay, so I am going to make this full screen. All right. So wait करना पड़ेगा क्योंकि हमारे दो अब स्माइल करेगा हर कोई, डिजिटल स्माइल। बेरोज I can't see you. बेरोज का वीडियो ऑफ है। Okay, Beroz, I didn't see you. Okay, once again, because Beroz wasn't there. Smile everyone. And now the second group of people. Smile everyone. Thank you very much। अगर आप लोग अभी भी यहाँ रहना चाहते हो, मेरे पास एक कुछ है, मैं अभी किसी को ऑन स्पॉट डालने वाली हूँ, मैं थोड़ा पहले डालने वाली थी बट आई एम नॉट श्योर। रिचा जो है ना, एक बहुत छुपी रुस्तुम है, वो बहुत अच्छा गाती हैं और मैं चाहूंगी कि रिचा एक छोटा सा अगर आप हम सबको अपना कोई गीत सुना दें। Come on Richa, Preet, this is a googly, googly ने थ्रो किया है, कुछ प्रैक्टिस नहीं, कई दिनों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। You are great, come on। Oh God, कुछ भी क्या? All the Sakis must learn this, that when they get a sudden request, they should be able to address it। ऐसा ही होता है एंटरप्रेन्योरशिप में सखियां, तो देखो दो ही लाइन गाऊंगी। I can tell you that what song for the Sakhis you can say, Dil hai chota sa. If you start, we can all join। Sure, that's good। That's lovely। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की
भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। Sakhis can join, no? They can, yeah, it can be a chorus. सब join करो. मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा। अरे सखीस को गाना चाहिए ना सभी को. हाँ, ये तो उन लोग के लिए. Thank you so much, Richa. I'm sorry, I should have told you. Thank you so much. Yeah, you told us to come better practice. And we got a Yeah. हम next time we हम will. लोगों ने भी फर्स्ट टाइम सुना है रिचा. This is not fair. ये 5 सालों में पहली बार सुना है. This is not fair. नहीं, we'll do more of these sessions. So Richa, now as a standing instructions of all Sani programs, you have to give one song for every program. Hey, this is not there, na? This is what is this? Huh? Can I please be like a fly on the wall kind of a thing and to see there? Thank you very Now much. don't say that we didn't tell you in advance and we put it. Richa, that is a responsibility of a board member. Huh? Oh God, my God. No, I'm talking about long term, not board member. As a member. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Richa, thank Bye. you. I love your voice and I love all of you. Thank you. All mentors. Thanks, Rashmi. Thank you so much. Thank you. Thank you so Karen much. has agreed to do the entrepreneurship program. Thank Karen, you. Yes. Karen has agreed to do entrepreneurship training. Okay. Oh, lovely. Wow. That's Lovely, great, lovely. Karen. Thank you Karen, so say much. thank you very much, Karen. Thank you.